Now, come to the next topic. This is basic strength. In the basic strength, we will discuss about the Lewis base. Correct? As we know, Lewis base, the molecules which can donate their lone pair are called Lewis base. You can see the definition. The compound which donate lone pair are called Lewis base. So, any compound, if any compound can donate their electron pair, donate their lone pair, then we call that is Lewis base. Is it right? Okay. Now see, donate their lone pair. But everything is related to now lone pair. Donate their lone pair. Now see, molecules have this lone pair. If these molecules donate this lone pair, we can say this is Lewis acid. Correct? If we talk about the strength, basic strength, then in this condition, what will we compare? As in case of acidic strength, what we compare? We remove H plus, then we compare the stability of anion. Similarly, in case of base, we have to compare the charge density available on this atom. If higher will be the charge density, then its tendency to donate this electron, the tendency to donate lone pair will be increased. Am I right? If these molecules have higher charge density, then its tendency to donate that electron pair will be more. As taking an example, just assume in this case of corona, your school asks you to donate 100 rupees. Now, I am taking three conditions. In the first condition, a student A have 100 rupees, a student B have 300 rupees, and a student C have 500 rupees. Now tell me, who will donate in general case? Everyone have same donating tendency. Then which one will donate more? It will donate more because he have higher amount of money. If you will have, eliminating all the exceptional cases, I'm just taking the normal case, that if you all want to donate but this one have higher amount, it means it can donate more. Its donation tendency will be more than B, and its donation tendency will be more than A. Similarly, in case of basic strength, if the molecules have higher charge density, then its donating tendency will be more. Now see, in these three cases, here we have no other electronic effect, but in case of this, you only have lone pair. You only have lone pair, no other electronic effect. But in second molecules, along with the lone pair, we have one plus I, because all the alkyl groups show plus inductive effect. Then we have one plus I effect. In case 3, we have 2 plus I effect. Is it okay? As the inductive increase, plus I means it will donate partially their electron to nitrogen, or nitrogen withdraw partial sigma electron pair toward itself, due to which its electron density will increase. As compared to this, their electron density will be more. As compared to this, its electron density will be more. If it have higher electron density, then its donation tendency will be more. If it have higher electron density as compared to this one, so its electron density will be more, sorry, its electron donating tendency will be more. And in compared to these two, it have higher charge density, so its electron donating tendency will be more than this one. Is it right? So in case of basic strain, what we have to consider? We just have to consider the electron density available at an atom. Okay. The next thing is Kb value. Higher will be the Kb value, higher will be the basic strength. Correct? Like K, higher will be the Ka value, higher will be the acidic strength. Similarly, higher will be the Kb value, higher will be the basic strength. Similarly, lower will be the pKb value, higher will be the pKb value, higher will be the basic strength. Correct? Basic strength. If Ka value will increase, basic strength will increase. If pKa value will decrease, basic strength will increase. Correct?
So we have 3 parameters to compare, but these two are related to this one, charge density on nitrogen. Is it okay? Now note it. Now we will go to the factor affecting basic strength. Okay. नेक्स्ट आ जाओ फैक्टर अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ. करेक्ट है. नाउ द फैक्टर अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ. नाउ सी, सबसे पहला फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में भी पढ़ा था. द सेम फैक्टर वी विल लर्न इन एसिडिक स्ट्रेंथ. नाउ कम टू द फर्स्ट फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड द स्ट्रेंथ और एबिलिटी टू विदड्रॉ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर है? मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ विदड्रॉ करने की जो टेंडेंसी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अगर किसी एलिमेंट की, किसी एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो सप्लाई करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक क्या होगा? वो कम हो जाएगा. अगर मैं कंपेयर करूं OH माइनस एंड F माइनस, F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को पुल करने की, अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी? फ्लोरीन की ज्यादा होगी ऑक्सीजन के कंपेरिजन में. HNON माइनस. क्लियर है? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी. अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. क्लियर है? तो F माइनस का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी. तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. क्लियर है? तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? घटता चलेगा. इसलिए क्या लिखा है? बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्लियर है? तो फ्लोरीन एंड OH माइनस में अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग? OH माइनस इज मोर बेसिक देन F माइनस. क्लियर है? तो लेफ्ट टू राइट, अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज करता चलेगा. लेफ्ट टू राइट चलेंगे, जैसे CH2 माइनस एंड NH2 माइनस में कंपेयर करने बोला जाए CH3 माइनस और NH2 माइनस में, NH2 माइनस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आएगा. यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी. तो CH3 विल बी more basic than NH2 minus. Correct? Now the next is the size of atom. Size of atom की बात करें, top to bottom चलोगे, अगर top to bottom चले, as the size increase charge density will decrease, और if charge density will decrease the stability of anion will increase. अगर stability बढ़ेगा तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. क्लियर है? टॉप टू बॉटम चले तो अगर हम ग्रुप में चले, अगर साइज इंक्रीज किया तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, अगर साइज छोटा है चार्ज डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा. तो साथ में अगर कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आएगा तो इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो, क्योंकि एक स्मॉल यूनिट पे चार्ज क्या है? ज्यादा है, ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो चार्ज का अमाउंट पर यूनिट एरिया क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है. बट यहाँ पे चार्ज का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कम होगी. सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. क्लियर है? तो साइज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा चार्ज डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा. चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो लोन पर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज करेगी. क्लियर है? तो बेसिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन साइज. तो साइज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज करता चलेगा. Cl माइनस एंड Br माइनस, तो F माइनस एंड Cl माइनस ले लो. F माइनस एंड Cl माइनस, इन दोनों में पूछा जाए तो पहला चीज क्या है? F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो F आना चाहिए. उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है हमारा? साइज. हमने क्या बोला? अगर साइज इंक्रीज करेगी तो चार्ज डेंसिटी क्या? फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज क्या है? काफी बड़ा है उसके कंपैरिजन में, तो क्लोरीन पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा? फ्लोरीन के कंपैरिजन में काफी कम होगा. चार्ज डेंसिटी कम होगा तो डोनेट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी? कम होगी. तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? कम होगा. तो साइज इंक्रीज कर रहा है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? इस वाले से कम हो जाएगा. क्लियर है? अरे क्लियर है?
तो दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होना चाहिए। आपको याद होगा एसिडिक स्ट्रेंथ में बताया था along the period electronegativity will dominate or along the group size will dominate, करेक्ट। तो ये क्या है, ये एक ग्रुप का है तो यहाँ पे क्या डोमिनेट करता है, साइज डोमिनेट करता है। एक पीरियड में चलेंगे क्या डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करेगा, क्योंकि साइज क्या होता है, कंपेरेबल हो जाता है वहां पे। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, ओके। नेक्स्ट पे आओ। तो पहला फैक्टर क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, and if size will increase basic strength will decrease. Now the third condition is extent of resonance. So just compare this carbon CH2 minus double bond, this molecule and this molecule CH2 minus। अब इन दोनों के बीच में बेसिक स्ट्रेन कंपेयर करने हैं, क्लियर है। नाउ सी यहाँ पे इन दिस कंडीशन माइनस चार्ज विल कम हेयर, तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाऊं तो दिस विल बी CH2 एंड माइनस डेल एंड माइनस डेल, चार्ज डेंसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू कार्बन एटम। नाउ इन दिस कंडीशन minus del and minus del. Now in this condition charge density is getting distributed among the three carbon atom। तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कम है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कम है इसका मतलब यहाँ पे चार्ज का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब चार्ज का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे चार्ज का अमाउंट ज्यादा होगा तो डोनेट करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे चार्ज का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम है, अगर चार्ज का कंसंट्रेशन कम है तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। तो जैसे ही एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इंक्रीज करता है डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ज्यादा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो एकुमुलेशन क्या हो जाएगा, कम। अगर एकुमुलेशन कम हो रहा है इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या है, चार्ज का कम है, और चार्ज का कंसंट्रेशन कम है तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो डोनेट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है। तो इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इस वाले से कम, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ इस वाले से क्या हो जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझा। चलो नेक्स्ट पे आओ। फोर्थ पॉइंट इज, ये नोट कर लेंगे, ये वाला नोट कर लेंगे, नोट कर ले ये वाला, ओके। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कह रखा है, ऑल प्लस इफेक्ट विल इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। जो सबसे पहला एग्जांपल बताया था वहां पे बताया है NH2NCH3 एंड NHNCH3NCH3, ये दो मॉलिक्यूल्स दे रखा था। यहाँ पे दो प्लस आई है, यहाँ पे एक प्लस आई है, तो जितने भी प्लस इफेक्ट है वो क्या करता है, प्लस इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई किया जाता है। तो अगर ये प्लस इफेक्ट लगाया, अगर प्लस ग्रुप है, प्लस इफेक्ट ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा। तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, इसके ऊपर इंक्रीज करेगा, और चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो डोनेट करने की एबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे चार्ज डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जितने भी प्लस इफेक्ट हैं, ऑल द प्लस इफेक्ट विल इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ एंड ऑल द माइनस इफेक्ट विल डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर है। उसी तरह यहाँ पे अगर F लगा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लास्ट वाले पे आओ। अनायनिक स्पीशीज आर मोर बेसिक देन न्यूट्रल स्पीशीज। अनायनिक मतलब अगर हम लेके चले यहाँ पे NH2 माइनस और NH3, तो क्या है, NH2 माइनस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, कई गुना ज्यादा हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इससे क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है। तो ये 5 फैक्टर हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली डोमिनेट इन पीरियड। सेकेंड जो है दैट इज साइज ऑफ एटम, बेसिकली डोमिनेट इन ग्रुप। रेस्ट क्या है, रेस्ट सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर सेपरेट आता है तो कोई दिक्कत, मगर जब कंबाइन करके आता है तो जैसे हम एसिडिक स्ट्रेंथ में पढ़े थे, हमें यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा कुछ कुछ चीजें इफेक्ट लगाने के लिए। क्लियर है।
एक ग्रुप या एक पीरियड में आता है तो हमारे लिए डिसाइड कर पाना आसान है, मगर मिक्स आता है तो फिर हमें बाकी सारे फैक्टर को इंक्लूड करके डिसाइड करना होगा। क्लियर है? समझा? नोट करो इसको। Now you have to solve all these questions. So at first pause your video and note all the question and solve one by one. Okay? Okay, note it. Note all the question. You have to compare the basic strength. Okay, note it and solve all the question first, then I will discuss one by one. चलो आ जाओ फर्स्ट वाले सवाल पे आओ। नाउ सी दिस वन। द फर्स्ट रूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज एटम क्या है? डिफरेंट है। जो चार्ज कंटेनिंग एटम है वो क्या है हमारे यहाँ पे? डिफरेंट है। चार्ज कंटेनिंग एटम डिफरेंट है तो सबसे पहले क्या लगा है हमें? और देखिए ये एक पीरियड के एटम है और क्या बताया था? एक पीरियड में क्या डोमिनेट करता है? लेफ्ट टू राइट चलेंगे अलोंग अ पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डोमिनेट। तो एफ इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की टेंडेंसी फ्लोरीन की क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। करेक्ट है? तो इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा है मतलब विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो सप्लाई करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने की टेंडेंसी कम है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? तो एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज, बेसिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन है। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा? कार्बन का। फिर कौन सा आ जाएगा? NH2, फिर OH, फिर F-। Is it correct? Okay. Come to the question number 2. Sit. Now, first thing is electronegativity, but as I told you that in a group size will dominate. The C, on going top to bottom, size of molecules will increase and all of them have same charge. 1 minus 1 minus and 1 minus all have same amount of charge. Now what we will discuss? We have to discuss about their charge density. Top to bottom, ongoing top to bottom, charge density will increase, or as the charge density will increase, the electron donating tendency will decrease. Is it okay? चार्ज डेंसिटी इंक्रीज, सॉरी चार्ज डेंसिटी टॉप टू बॉटम चलेंगे, चार्ज डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। चार्ज डेंसिटी डिक्रीज किया, साइज इंक्रीज, चार्ज डेंसिटी विल डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? तो टॉप टू बॉटम चला, सबसे बड़ा साइज किसका है? फ्लोरीन का। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज जितना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम। सबसे कम कौन सा हो जाएगा? आयोडीन। फिर कौन सा हो जाएगा? Br माइनस। फिर कौन सा हो जाएगा? Cl माइनस, फिर F माइनस। ओके, कर दो तो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए सेम पीरियड क्या है? लेफ्ट टू राइट चलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज, बेसिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो गया? ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। इस वाले में बताइए टॉप टू बॉटम चला, साइज विल इंक्रीज, बेसिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। इस वाले में बताइए H2O and OH माइनस, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, दिस इज न्यूट्रल। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर मोर बेसिक देन न्यूट्रल स्पीसीज। सेम थिंग इज अप्लाइड हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, this have one plus I effect and it have resonance, extent of resonance will decrease the basic strength। क्या होगा? ये लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में चले आएंगे। क्लियर है? तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप आएगा ये लोन पेयर क्या होगा? कॉन्जुगेशन में होगा। कॉन्जुगेशन में जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप का अटैक कर पाना या इसका इलेक्ट्रॉन उसको सप्लाई कर पाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम होगा? क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या हो रहा है अब यहाँ पे? यहाँ जो लोन पेयर का चार्ज था वो क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक जगह पे एक्यूमुलेटेड नहीं है। एक जगह पे एक्यूमुलेटेड नहीं है तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है? तो इस वाले में तो ये क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस विल डिक्रीज द
बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे रेजोनेंस है, रेजोनेंस के वजह से लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से मॉलिक्यूल्स की लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? तो इसका लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इट विल बी मोर बेसिक देन दिस मॉलिक्यूल्स। इस वाले में कंपेयर करो, सेम चीज है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस अवेलेबल है। तो रेजोनेंस में जाने की वजह से डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस वाले में चेक कीजिए, सेम चीज अवेलेबल है, यहाँ पे प्लस आई है और यहाँ पे रेजोनेंस है, तो ये वाला क्या होगा, ज्यादा बेसिक हो जाएगा। इन तीनों में कंपेयर करो, यहाँ पे चेक करें। पहली बात, यहाँ पे भी कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, कार्बन सेम है मगर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, डिफरेंट है। दिस इज sp, दिस इज sp2 एंड दिस इज sp3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी विल डिक्रीज। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों से ज्यादा, तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। इन दोनों में कम कंपेयर करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की इससे ज्यादा, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। करेक्ट है? क्लियर है? ये सारे सवाल नोट कर ले। ये 3 सवाल है, ये भी कर लीजिए पहले। तो देखो इस वाले में ट्राई करके देखें आप एक बार, ये सवाल करके देखिए, सॉल्व हो रहे हैं, राइट। आ जाओ, देखो इस वाले में एनाइन के चार डेंसिटी निकालनी है हमें, बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है, मतलब चार डेंसिटी निकालना है। इस वाले का देखो क्या लग रहा है, प्लस आई, इट विल इंक्रीज द चार डेंसिटी। ये क्या है, रेजोनेंस में है, इट विल डिक्रीज द चार डेंसिटी। ये क्या है, रेजोनेंस में, और हमने पढ़ रखा है कि सिंपल रेजोनेंस एंड इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था, ज्यादा होता था। रीजन बताया था, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब रेजोनेंस में पढ़ाया था उस टाइम रीजन बताया था। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है, मतलब स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। क्लियर है? तो मतलब यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इससे ज्यादा है, तो डोनेट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ भी चार्ज डेंसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इसके कंपेरिजन में ज्यादा है। क्लियर है? तो इन दोनों में बोला जाए तो ये क्या हो गया, हमारा ज्यादा हो गया। इन दोनों में बोला जाए तो ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा हो पाता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो इसका यहाँ पे चार्ज डेंसिटी डिक्रीज भी, अगर डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा हो रहा है तो चार्ज का एक्यूमुलेशन भी क्या होगा, कम होगा, तो डोनेट करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? इन दोनों स्ट्रक्चर में इसका डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इससे ज्यादा होता है। क्लियर है? इस वाले में देखो तो ये भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड के साथ है, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड के साथ है, मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इससे भी क्या है, ज्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है मतलब चार्ज का एक्यूमुलेशन क्या होगा, कम होगा, तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? अरे क्लियर है? इसको तुम अनायन की स्टेबिलिटी से भी निकाल सकते हो, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ में पढ़ा था, अनायन की स्टेबिलिटी निकालने के लिए भी हम लोग क्या करते थे, सारे इफेक्ट को लगाते थे। क्लियर है? वो इफेक्ट हमें क्या बताता था, चार्ज डेंसिटी बताता था। चार्ज डेंसिटी अगर बढ़ता था तो अनायन की स्टेबिलिटी क्या होती थी, घटती थी। अगर चार्ज डेंसिटी घट जाता था, अनायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। तो आप अनायन की स्टेबिलिटी भी लगा सकते हैं। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा, अनायन कम स्टेबल, अनायन कम स्टेबल है तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे देखो रेजोनेंस में है तो इससे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ज्यादा है, इसलिए स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा, तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, इस वाले से कम। इन दोनों में कंपेयर करो तो पता है ये ज्यादा स्टेबल है, अगर ज्यादा स्टेबल है तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन दोनों में कंपेयर करके देखेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? तो आप अनायन की स्टेबिलिटी भी लगा सकते हैं, क्योंकि अनायन की स्टेबिलिटी भी क्या होता है, चार्ज डेंसिटी से ही हम लोग डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। इन दोनों में अभी जस्ट बताया था क्या होगा, ये ज्यादा हो जाएगा। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा होगा।
अब यहाँ पे याद रखने इन दोनों के बीच में हमेशा NH2 माइनस क्या होता है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा बेसिक होता है। क्लियर है? और इन दोनों में ये वाला आ जाएगा, ये वाला क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ, 13 में क्या करोगे? तो देखो इस वाले में क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे रेजोनेंस दिखेगा और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा होगा, दिख रहा है क्या? यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बीच में कौन है, sp3 एटम है, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। तो ये अब की बार ये पूरा ग्रुप इस नाइट्रोजन के लिए एक अल्काइल चेन है और अल्काइल चेन का क्या लगता है, प्लस आई लगता है। और यहाँ पे नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट है क्या यहाँ पे? नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे अल्काइल चेन का क्या लगेगा, प्लस आई, मतलब चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगा, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक नोट कर लेंगे ये सारे सवाल।